Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So today we will take up the second half of 2017 CSAT paper. We will begin from question number 41 and you can watch our previous videos. We have uploaded all the videos in a proper sequence from 2013 CSAT papers. So we have few passage. So best explanation is being asked in question number 41. So, according to it, it should be A, political development is not a unilinear process, for it involves both growth and decay. Option A. Okay, then 42. Again, what is the most logical, rational, critical inference that can be drawn? So, option C, which states devolution to be successful requires democracy in which there's free expression of the will of the people at lower level and their active participation at the grassroots levels. Option C. Then moving to passage number 3, same what is the essential message from the passage. So speaking of the digital technologies is speaking of our life and living. Option B. Fine. Then question number 44. Here, option A is stating once a country reaches the middle income stage, it runs the risk of falling productivity, which leads to stagnant incomes. Option A. Okay, then rational assumption is being asked here. So, inclusive innovation and research and development can help create an egalitarian society. Option C. Hmm. Now, here, question 46 is asking the rational inference. So, on this basis, relation between the climate change and the migration is not yet properly understood. Option D. Then, passage number 7. So, it is asking us what are the following assumptions made. So, only two is correct. That is the most relevant one here. Option B. Then 48, it is asking us which of the following statements they are correct regarding the biopesticides. So amongst this, two becomes incorrect because they are not persistent in the environment, they're biodegradable. So answer would be 1 and 3. 48 का option A. A, okay, 3 भी गलत बोल रहे. They are essential to maintain the biodiversity of any ecosystem. ठीक है, करेक्ट होना चाहिए था बट आई थिंक ये इसेंशियल वर्ड की वजह से इनकरेक्ट होगा फिर तो. देन क्वेश्चन नंबर 49. तो थ्री डिजिट नंबर्स हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर बताई हुई है हमें. थ्री डिजिट है, डिफरेंट डिजिट्स हैं तीनों, कोई भी रेपिटेटिव डिजिट नहीं है. नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड रिवर्स करने के बाद भी इट वुड बी डिविजिबल बाय 7. सो ऐसे कितने तीन डिजिट नंबर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है? तो थ्री डिजिट नंबर है तो हम नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 100x, ये 100 पोजीशन के लिए, फिर 10th पोजीशन के लिए इन यूनिट्स प्लेस पे z. तो नंबर जो है वो है एक्स वाई जेड, हमने उसको लिखा है. उसको डी कोड जब करते हैं इट इज रिटन इन दिस फॉर्म. एंड रिवर्स जो है, रिवर्स वुड बी रिटन एज दिस. सेंटर में y रहेगा, रिवर्स करने के बाद अगर x y z एक नंबर है तो इसका रिवर्स होगा z y x. तो उसको हमने इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, उसको फर्दर ब्रेक करके. अगर ये दोनों नंबर डिविजिबल बाय 7 है विच इज गिवन टू अस, तो मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी डिविजिबल बाय 7 होगा. ये हर एक वी कैन से कि जनरल चीज है जो एप्लीकेबल होती है. तो हमने डिविजिबल बाय 7 अगर है तो दोनों का डिफरेंस जो है इक्वेशन फॉर्म में लिख दे. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो वी गेट दिस इन द एंड. सो इट इज इम्प्लाइंग कि जो डिफरेंस बिटवीन x और z है दैट इज डिविजिबल बाय 7, और वी कैन से दैट इज इक्वल टू 7, जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, बिकॉज 99 डिविजिबल बाय 7 नहीं है. सो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं जिनके बीच में x और z माइनस करते डिफरेंस वुड बी 7. तो 2 और 9 हो गया, तो इसमें एक ये x और z है तो 100 प्लेस और यूनिट प्लेस के ये जो लेटर्स हैं वो है. अब जो 10th प्लेस है वो भी कोई नंबर होगा और वो नॉन रिपीटेटिव है, इनमें से नहीं हो सकता. हमें बस ये पता लगाना कितने नंबर हो सकते हैं, तो हम इसको और आगे सॉल्व नहीं करेंगे कि टू जैसे 5 9 एक नंबर हो सकता है, इसका रिवर्स होगा 9 5 2. तो दो नंबर ये हो गए इस कॉम्बिनेशन से और दो नंबर इससे आएंगे. तो हमसे पूछा कितने नंबर हो सकते हैं, तो 4 हो सकते हैं इन टोटल. Option B. हम्म.
Now there are four statements given. Question states given that statement 4 is true, matlab fourth is true. What can be definitely concluded out of these three statements which are left? So fourth is stating कि some colors are not pleasant. So इसमें से तीसरा तो गलती हो गया, no color is pleasant, ये गलत हो गया क्योंकि कुछ some colors यहाँ पे वर्ड है. सो दूसरा जो है दैट शुड बी करेक्ट, बट ऑप्शन में ऐसा दे नहीं रखा, तो इसमें से रेलेवेंट ये बचेगा वन इज फॉल्स, क्योंकि वन बोल रहा है ऑल कलर्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे सम दे रखा है, कुछ कलर्स नॉट प्लेजेंट, तो मतलब कुछ कलर्स होंगे जो प्लेजेंट होंगे, उसमें सारे कलर्स नहीं हो सकते हैं. ऑप्शन डी. तो वन इज फॉल्स. Moving to 51. So, how many numbers are there between 99 and 1000 such that the digit 8 occupies the units place? So, इसमें you just have to count to 100 से 200 यूनिट प्लेस पे बस नंबर 8 आना चाहिए. तो 10 ऐसे नंबर होंगे, मतलब पहला नंबर क्या होगा, 108. यूनिट्स प्लेस पे 8 है, फिर 118 होगा, 128 होगा. तो ऐसे करके 100 से 200 के बीच में 10 यूनिट्स होंगे. सिमिलरली 10 10 ही रहेंगे आगे जाके भी, एज पर अगर जो कैलकुलेशन किया है, क्योंकि हमें सिर्फ 1000 तक निकालना है. सो 80 होना चाहिए. अब ये 10 8 टाइम्स होगा, तो इट नहीं, वुड नया बी टाइम होगा. ऑप्शन सी होगा इसका. 9 है क्या? हाँ हाँ, ऑप्शन सी, क्योंकि ठीक है. 900 से 1000 तक भी जाएंगे वो भी तो काउंट होगा. हाँ वो मैंने फिर आई थिंक मैंने 8 ही लिए हैं इसमें. ठीक है, हम्म. ये 200 से, ठीक है, हाँ ये 100 से 200 से 300. 300 वाला यहाँ पे मैंने नहीं काउंट किया, ये यहीं पे गैप हो गया वो. हाँ, तो 200 वो से 10 300. 10 ही है, मतलब 100 नंबर्स में हर एक में 10 नंबर ही आएंगे. बस यहाँ हाँ. पे ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि मोड जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू है. डिस्ट्रीब्यूशन का तो पैटर्न क्या हो सकता है, तो इट शुड बी स्क्यूड टू द लेफ्ट, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा ऑन द ग्राफ. ऑप्शन डी. Then 53, age of Mr. X last year it was a square of a number. मतलब it can be written as this, and it would be the cube of the number next year. मतलब प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में वो नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लास्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर में. तो अगर प्रेजेंट ईयर ये है, तो लास्ट ईयर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर है, एक नंबर का स्क्वायर है जो एज है. प्रेजेंट ईयर में प्लस 1 ईयर ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम लिखना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हम लिखेंगे, और दैट इज गिवन कि वो एक क्यूब ऑफ अ नंबर है. पूछा ये है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ इयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन. सो इसको सॉल्व करने से पहले पहले वी विल अगेन डी कोड की लास्ट ईयर एज क्या है. तो इट वुड बी, यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है, कि वो स्क्वायर ऑफ अ नंबर भी होना चाहिए, और 2 साल के बाद वो क्यूब भी होना चाहिए. 2 साल 25 में ऐड करते तो 27 आएगा, तो वो क्यूब है 3 का. 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5. तो ये आपको हिट एंड ट्रायल से ही इसको आप डिसाइफर कर सकते हो, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. अब 3 का क्यूब तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया कि वो है 2 साल के बाद 27 ईयर्स एज होगी. अब नेक्स्ट क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब होगा, क्योंकि 3 तक तो हम देख चुके हैं कि वो रेलेवेंट है. 4 का क्यूब होगा 64 ईयर्स का जब एज होगी, तो 64 इज अ क्यूब ऑफ 4. तो कितने साल वेट करना पड़ेगा, तो 64 माइनस 26 जो आज की एज है, तो द ईयर दैट इल टू वेट विल बी 38 ईयर्स. ऑप्शन बी. 54 में वी आर गिवन विद दिस इंफॉर्मेशन, रेशियो में 3 इंडिविजुअल्स हैं. तो इसमें एंड में पूछा है कि व्हाट वुड बी द रेशियो दे शुड शेयर द अर्निंग्स. तो तीनों में हम हमें ये एक इक्वेशन गिवन है एंड ये एक इक्वेशन है. तो पहले आप पी एंड क्यू की रिलेशन हमें मिल गया, अब यहाँ से क्यू एंड आर की इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगी. एंड आप इस क्यू एंड आर को इस इक्वेशन में पुट करते हो, या फिर इसमें पुट करते हो, सॉल्व करोगे तो आपको पी और आर के बीच में भी रिलेशन मिल जाएगी. सो रेशियो जो होगा, पी और क्यू का भी 3 क्यू है, पी और आर का भी 3 आर है, तो मतलब पी को सबसे ज्यादा मिलेगा, दैट वुड बी 3, एंड क्यू और आर इक्वल है, तो इसलिए 1:1. ऑप्शन ए. देन 55 है, we are given that the members of a family 6 person are there. ये this is the information that we have, and that's how we have written it so that इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए.
So the question is ki which of the following inferences can be drawn from this information? So we can say that A is the husband of D. इसमें 3 मेल है 3 फीमेल होंगे क्योंकि टोटल 6 मेंबर्स हैं, इक्वल हमें दे रखा है कि इक्वल होगा। तो आप इस इंफॉर्मेशन के यहाँ पे लिखो तो बी ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन बी। देन 56 सेम क्वेश्चन के बेसिस नहीं, अच्छा उस पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज बैग कंटेन्स 20 बॉल्स इन टोटल। तो 20 बॉल्स हैं, 8 उसमें ग्रीन है, 7 वाइट है, 5 रेड बॉल्स हैं। अब वी इट इज आस्क्ड कि कितनी बॉल्स मिनिमम नंबर हमें पिक करनी पड़ेगी फ्रॉम दी बैग टू बी अश्योर्ड ऑफ पिकिंग एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। तो मिनिमम पूछा है तो मिनिमम में 8 ग्रीन सारी उठाएंगे, 7 वाइट भी उठाएंगे, उसके बाद सिर्फ एक बॉल जो 5 बॉल्स बची वो उठाएंगे क्योंकि सारी रेड ही बची, दिस इज अज्यूम्ड। So in total, we will pick up 8 plus 7 plus 1, that would be 16. ऑप्शन बी। Then 57th question. So two boys are there, two girls are there, arrange करना है in a row so that girls are not next to each other. ये condition है। तो कितनी possibilities हो सकती है of the arrangements? So in this एक अरेंजमेंट ये हो सकता है, पैटर्न अगर हमें लिखना है बॉय गर्ल एक ही हो सकता है। सो इसमें स्टार्टिंग में पहले 2 बॉयज हो सकते हैं, फिर नेक्स्ट में 2 गर्ल्स हैं, फिर एक बॉय और एक गर्ल बचा, तो 2 इंटू 1 वुड बी 4। एक पैटर्न हो सकता है, यहाँ पे अभी बॉय से था तो अब गर्ल से स्टार्ट कर सकते हैं, गर्ल बॉय। तो ये सेकंड रो वाला है, इसमें अगेन पहले 2 गर्ल्स 2 बॉयज इस पोजिशन पे आ सकती हैं जो ऑप्शन हमारे पास है, तो 4। एक पैटर्न होगा गर्ल बॉय गर्ल, तो इसमें भी 4 ही होगा। अब इसमें बॉय गर्ल गर्ल और बॉय ये नहीं हो सकते बिकॉज गर्ल्स आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। सो 4 इंटू 3 वुड बी 12। ऑप्शन सी। नाउ आउटर सरफेस दे रखा है, दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ अ क्यूब पेंटेड इन रेड कलर, स्लाइस्ड पैरेलल सो दैट एक क्यूब का जो स्लाइस करने के बाद मेजरमेंट है दैट वुड बी 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड 64 ऐसे हम स्मॉल क्यूब्स इसमें से कट कर सकते हैं। तो it is asked how many small cubes do not have painted face। so अगर आप एक फेस को देखते हो तो ये जो होगा ये बाहर से तो पेंटेड होगा ये वाला फेस, बट इसके अंदर भी जो क्यूब कट करेंगे हम दैट विल नॉट बी पेंटेड। सो इस केस में सिंस 4 साइड्स हैं तो डेप्थ में भी वो 4 जाएगा। तो अज्यूम कर लो कि दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूब, या आप फ्रंट से क्यूब को देख रहे हो, ये बेस है, सपोज ये टेबल पे क्यूब रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्यूब की हाइट हो गई है। अब ये जो बीच में क्यूब्स होंगे अंदर की साइड जो हमें नहीं दिख रहे हैं, आपको जस्ट इमेजिन करना है, तो अंदर 4 होगा एक लेयर और एक और 4 क्यूब्स होंगे, तो 8 क्यूब्स होना चाहिए टोटल। ऑप्शन ए। देन 59, again there are certain individuals, they're standing in a row facing north, so this is the row, and again these conditions are given, आपको just you have to place them right, and on this basis this is the condition which is being fulfilled out of this. So G is to the immediate right of D. The right of D is G. ऑप्शन सी। Okay, then 60. Certain code 256 means red color chalk, 589 means green color flowers. So कौन सा ऐसा digit है which states white? कोड क्या है white word के लिए? So 256 और 589 से कॉमन देखोगे 5 है इस नंबर में, तो यहाँ पे कलर और कलर दिस इज कॉमन, तो 5 विल डिनोट कलर, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, एंड इट शुड बी 4। ऑप्शन बी। देन पैसेज 61, inference, so air quality index is not helpful to the residents of many of the large cities। ऑप्शन सी। then 62 also, again the logical and the rational inference, so C होना चाहिए, we must create conditions for the faster growth of productive jobs outside of the agriculture, even improving productivity of agriculture। ऑप्शन सी। Then 63 is also passage, same inference, what can be drawn from the passage. Agriculture practices that enhance biodiversity, they can often increase the farm output and reduce vulnerability to disasters। ऑप्शन ए।
In 64 also again, India should push up the public investments, encourage. So you just have to look कि पहले तो positive होना चाहिए statement and it should be broad. तो ये दो bases ध्यान में रखने चाहिए while choosing the right option. ऑप्शन सी। Then what can be the most logical corollary that can be drawn? So increasing efficiency of farm to fork value chain is necessary to reduce poverty and malnutrition. ऑप्शन ए। Hmm. Okay. Then in 66, which one of the following views corroborates the above statement which is given? So, a strong center is a binding force for national integrity. ऑप्शन बी। In passage number 7, the above statement argues for rule according to the consent of the governed. ऑप्शन बी। In 68, so this is a question of average. So average rainfall city में दे रखी है 4 days के लिए. So this is the equation for that. 6 days के लिए भी हमें information given है और fifth और sixth day जो कि last 2 days है उसका ratio हमें दे रखा है. We have to get it कि fifth day पे कितना rainfall हुआ. So ये दो equation है, इनको अगर आप break करोगे so you will see कि 2 days की रेन हमें मिल सकती है by the difference. तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0.4, 0.4 नहीं, यहाँ पे 1.6 आएगा जब 4 को आप मल्टीप्लाई करते हो विद 0.4. तो 1.6 और 3 में डिफरेंस जो होगा दैट विल गिव अस द रेन फॉर लास्ट 2 days, दैट वुड बी 1.4. अब यहाँ पे वी हैड द रेशियो, तो इस रेशियो को आप कैसे लिख सकते हो? फॉर द फिफ्थ डे इट वुड बी 4:7x एंड सिक्स्थ डे के लिए 3 इन 4 और 3 का प्लस करके 7 आता है. सो विल गेट 3/7 का रेशियो फॉर द सिक्स्थ डे. So since last 2 days में total rain थी 1.4, तो equal to 1.4 हो गई. When you solve, we'll get the value of x. अब x की वैल्यू because हमें फिफ्थ डे के लिए निकालना है, तो सिंपली यहाँ पे 4/7 इंटू x आप करोगे तो you'll get 0.8 inches. So C होना चाहिए. ऑप्शन सी। ऑप्शन ए. सी। हाँ जीरो C. पॉइंट 0.8. नाउ यहाँ पे भी आपको जस्ट रिप्रेजेंट करना है डेटा को. ये इंडिविजुअल्स हैं, लोकेशन दे रखी है, सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज गिवन है. ये सारी कंडीशंस आप नोट करते जाओ एंड यू विल गेट टू द राइट आंसर. सो क्वेश्चन 69 है, हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी? बी. एंड टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स बिलोंग? तो मुंबई होगा. एंड इन 71, हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद? तो ई होना चाहिए. सो तीन क्वेश्चंस का आप बता दो दिव्या. 69 का ए, हम्म. 70 का बी, 71 का बी। ठीक है. Then 72, so in a school there are 5 teachers. These are teachers. Subjects दे रखे हैं कि कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं. तो पूछा है who teaches maximum subjects. So simply आप बस लिखते जाओ. You can clearly see कि B is teaching the maximum number of subjects. ऑप्शन बी। Then here we have a 2 digit number. It is reversed. So larger जो two numbers होगा divided by the smaller number. And पूछा what is the largest possible remainder. सो इन दिस केस 2 digit नंबर है, तो x एंड y को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10x+y. इसका रिवर्स क्या होगा? yx. तो 10y+x वुड बी. फर्दर इसको एक्सपैंड करके जब हम लिखते हैं, अब 2 digit है तो वी विल सी कि एक यूनिट जो एक डिजिट जो है 9 होना चाहिए, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल है तो हम 99 तो नहीं ले सकते इसमें. 99 का रिवर्स भी 99 होगा तो उसको डिवाइड करेंगे तो वो 1 ही आएगा. सो इन दिस केस 98 आप देखोगे तो इफ यू सी 98 या 97 का आप सॉल्व करके देखते हो, इसमें 98 और 89 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर छोटा आएगा. तो इसका मतलब जो 10th प्लेस और यूनिट प्लेट पे डिजिट आ रहे हैं उनमें जितना डिफरेंस ज्यादा होगा रिमाइंडर उतना बड़ा होगा. सो यू कैन ट्राई फॉर 95 और 94 से भी आप ट्राई कर सकते हो. सो यू विल सी कि 94 में जो रिमाइंडर आएगा वो 45 आएगा, क्योंकि रिवर्स डिवाइड करोगे एंड यू विल सी कि यहाँ पे 45 वुड बी लेफ्ट. ऑप्शन डी। देन इन 74 इनकम का रेशियो है, वी हैव द एक्सपेंडिचर रेशियो, सेविंग्स इज ₹6,000. सो इन मतलब एक्सपेंडिचर इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? एक्सपेंडिचर वुड बी इक्वल टू टोटल इनकम
माइनस जो आपकी सेविंग है, सो वट एवर वुड बी द अमाउंट लेफ्ट, दैट वुड बी द डिस्पोजेबल इनकम और अमाउंट लेफ्ट फॉर एक्सपेंडिचर। तो सिंपली दोनों इंडिविजुअल्स के लिए सेपरेट इक्वेशंस आप लिखोगे, एक्स इज फॉर द इनकम और जो वाई वेरिएबल आप एक्सपेंडिचर रेशियो के लिए यूज करोगे। तो एक्स के लिए अब यहाँ देखते हैं, एक्सपेंडिचर जो है 3y, तो 3y इक्वल टू इनकम क्या है 4x है एक्स के लिए, तो 4x माइनस 6,000, दोनों की सेविंग सेम है। y के लिए इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, एक्सपेंडिचर क्या है 2y प्लस इक्वल टू जो इनकम है 3 है फॉर y एंड माइनस सेम सेविंग्स है। तो इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग y इज इक्वल टू x। तो आप इसको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट कि x की वैल्यू 6,000 आएगी। और हमें x ही पता लगाना है क्योंकि हमसे पूछा टोटल इनकम कितना है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 6,000, सिमिलरली 3 उनको टोटल करोगे तो इट वुड बी 42,000। सो मीन ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी। नाउ इन 75, अब ये 3D फिगर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो देयर टू वॉल्स, और जो सीलिंग है दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट राइट एंगल पे एंड दैट इज पॉइंट पी। तो 3D फिगर ये सपोज करो ये दो वॉल्स हैं ये, और एक ये वॉल है, एंड ये ऊपर जो है ये सीलिंग है, या फिर आप नीचे इसको रिवर्स करके भी देखोगे वो थोड़ा कम कंफ्यूजिंग होता है। तो दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। सो देयर इज अ फ्लाई इन द रूम which is in the air and 1 meter from one wall, तो ये इस wall से जो distance है वो 1 हो गया। 8 meters from other wall, तो इट कैन यू कैन टेक कि जो नीचे फ्लोर है वो एक वॉल कंसिडर आप कर सकते हो, या साइड वाली वॉल को भी कर सकते हो, ऊपर वाली को भी कर सकते हो। एंड 9 मीटर फ्रॉम पॉइंट पी, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 9। तो पूछा हाउ मेनी मीटर्स द फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग। सो ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है डिस्टेंस वाला, अब पी की कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जी 0 0 0 0 पे ही है, और जो फ्लाई की है उसकी कोऑर्डिनेट्स आप लिख लोगे। एंड जो फॉर्मूला है दैट इज की जो डायगोनल है दैट स्क्वायर ऑफ द डायगोनल इक्वल टू 1 ये वाला स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस जो सीलिंग वाला डिस्टेंस निकालना है सी स्क्वायर। तो ये आया कैसे है 0 - 1, जो एक ये पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट्स है, और जो पॉइंट ये वाला पॉइंट पॉइंट एफ इसको मान सकते हो। तो इन दोनों को माइनस करके जो बचता है दैट वुड गिव अस ये 1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे। सो जस्ट हैव टू सॉल्व एंड सी वुड बी 4। ऑप्शन ए। हम यहाँ पे ट्रेन स्टेशंस दे रखे हैं, 1 वे और 2 वे कौन कौन से डिस्टेंसेस हैं दैट इज रिटन, तो वो आप एरो फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो सो एज टू सिंप्लीफाई। अब ये डबल वाले जो है ये मतलब both the ways you can travel. So 76 question is asking, while traveling from C to H, means C to H we have to go, which one of the following stations must be passed through, मतलब उसको आप skip कर ही नहीं सकते हो। सो सी से अगर आप स्टार्ट करोगे यू कैन सी कि सी से बस एक ही ऑप्शन है, सी टू ए आप जा सकते हो। ए के बाद यू हैव टू गो ई, ए से भी बस एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो ई के बाद फिर आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं कि आप डी जा सकते हो, ई के बाद आप जी भी जा सकते हो। सो ई वुड बी द स्टेशन जो स्किप नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी। देन वी हैव 77, सेम क्वेश्चन के ऊपर ही है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम एफ टू ए without passing through any station more than once. So F to A we have to go. मतलब ये we have F, here we have A. So written down कितने कितने आप पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप एक बार ऑप्शंस पे भी नजर मार लो कि हमें कितने वो वैल्यूज दे रखे, तो 4 R है तो इट वुड बी 4। ऑप्शन डी। सेम क्वेश्चन पे रूट बिटवीन जी और सी क्लोज्ड है, सो दिस रूट इज क्लोज्ड एंड विच इन द फॉलोइंग स्टेशंस नीड नॉट बी पास्ड थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम एच टू सी। तो एच टू सी हमें जाना है बट जी टू सी जो है दिस रूट इज क्लोज्ड एंड आप एक स्टेशन पे बस एक बार ही पास कर सकते हो। पूछा है कौन सा नहीं ट्रैवल करने की जरूरत पड़ेगी, तो जब आप देखोगे एच टू जी जाओगे, जी से बी जा सकते हो, बी के बाद फिर आप एफ जा सकते हो, डी ऐसे ऐसे करके यू विल हैव अ रूट, और ए जो होगा ए आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ऑप्शन सी। सी ना। 79, फिर से वही 2 डिजिट नंबर है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर
and the one obtained on reversing it is always 27. तो ये एक 2 डिजिट नंबर है, इसको रिवर्स करके yx होता है, तो decode करके डिफरेंस दे रखा है, will always be 27. How many such maximum 2 digit numbers are there? So when you solve this particular equation, you will be left with x और y के बीच में डिफरेंस 3 होना चाहिए. तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो इट वुड बी मोर देन 5. तो none of the above should be the right answer. ऑप्शन डी. In 80th question, which is the last question for the day, so what is the total number of digits printed if there is a book which contains 150 pages and we have to number the pages from 1 to 150? तो पूछा कि कितने बार कितने डिजिट्स हमें ऐसे प्रिंट करने पड़ेंगे. तो 1 to 9 जो पेज होगा, 9 बार आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 ऐसे. देन 10 to 19 आप देखोगे तो 10 ये नंबर्स हैं, अब इसमें दो दो डिजिट्स हैं, तो 10 into 2 करोगे तो 20. सिमिलरली 99 तक 20 20 20 आएगा, तो ये 9 टाइम्स हो गया, तो ये 180 और प्लस ये 9. राइट इट डाउन हेयर. अब 100 से देखते तो 100 and 109, तो अब ये 3 3 है एंड दिस वुड बी 10 टाइम्स, तो 10 into 3, तो 30 वुड बी देयर. सिमिलरली 149 तक 30 30 30, इट वुड बी 5 टाइम्स एंड 150 आ गया. अब लास्ट एक नंबर बचा 150, तो इसमें 3 डिजिट्स हैं, 3 बार प्रिंट करना पड़ेगा, तो +3. तो एंड में आपको जस्ट इनका टोटल करना है, इट वुड बी 342. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. Okay, so thank you so much everyone for joining us, and we will take up the paper of 2018 on next Sunday, and you can solve the first 40 questions. So meet you next week. Thank you so much for joining us here.